तो हम कर रहे थे कि नारद मुनि जी अपनी 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 लाइफ बता रहे थे व्यासदेव को, राइट, कि मैं कैसे नारद मुनि बना। तो उसमें फिर व्यासदेव जी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे आपको याद है, तो आगे वो स्टोरी चलती जा रही है। तो चलते चलते स्टोरी में हम वहां तक पहुंच गए थे कि नारद मुनि की माँ को सांप ने डस लिया था, और वो जब वो 5 साल के थे, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, हमने देखा था कि और कोई नहीं था। तो वो उसका उसके लिए उसकी माँ थी और उसके लिए उसका बेटा था। तो जब ये हुआ तो फिर नारद मुनि क्या क्या करने लगे, ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ। राइट। तो वहां पर फिर उनको रास्ते में काफी कुछ बिल्डिंग्स दिखी, बहुत आधुनिक चीजें भी दिखी। तो हमने देखा था कि साइंटिस्ट्स ने अभी अभी नहीं हमने तरक्की की, ये बहुत साल पहले भी ये चीजें पिछले कल्प में भी थी, और ये अब वापस डिस्ट्रॉय हुई, फिर इससे ये दोबारा बन रही है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि और उनको क्या दिखा जब वो चलते गए आगे। right? So we'll start from today 1.6.13. Right. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं। वेणुशरस्तंभा कुशा किशा कुशा किचा किचा किचाका गह्वरम एक एवातीयतो हम अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभा भयंकरं व्यालोलुका शिवाधिरम्। I can passed alone through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Anyone wants to read the purport? I'll give it a try, Prabhuji, but I'm outside, so please excuse my disturbances in the background. No. Okay. It is the duty of a mendicant to experience all varieties of God's creation by traveling alone through all forests, hills, towns, villages, etc. To gain faith in the God and strength of mind, as well as to enlighten the inhabitants with the message of God. A sannyasi is duly bound to take all these risks without fear, and the most typical sannyasi of the present age is Lord Chaitanya, who traveled in the same manner through the central Indian jungles, enlightening even the tigers, bears, snakes, deers, elephants, and many other jungle animals. In the age of Kali, sannyasi is forbidden for ordinary men. One who changes his dress to make propaganda is a different man from the original ideal sannyasi. The change, ideal sannyasi. Yeah. One should, however, take the vow to stop social intercourse completely and devote life exclusively to the service of the Lord. The change of dress is only a formality. Lord Chaitanya did not accept the name of sannyasi, and in this age of Kali, the so-called sannyasis should not change their former names, following in the footsteps of Lord Chaitanya. In this age, devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended. And one who takes the vow of renunciation of family life need not imitate the
Paravrajakacharya like Narada or Lord Chaitanya, but may sit down at some holy place and devote his whole time and energy to hear and repeatedly chant the holy scriptures left by the great acharyas like the 6 Goswamis of Vrindavana. Haribol. Thank you, Mataji. All right. So, क्या बोल रहे हैं कि I then passed along through many forests of this sharp grass, weeds and etc. Right. तो अभी सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि जो डिवोटी हैं वो अटैच नहीं होते एक सिंगल प्लेस पे, right? They keep on moving. So the same was the detachment of this boy, right? Who was going to become a Narad Muni in his next lifetime. तो और ये चीज हमने बहुत अपने इधर भी देखी है. हमारे टेम्पल में बहुत सारे ब्रह्मचारी, एक आदि पुरुष प्रभु थे, तो वो मेलबर्न में थे और वो सिडनी मूव कर गए. तो उनसे बात हुई तो हमने पूछा कि आप क्यों मूव कर गए. कहते मैं कंफर्टेबल हो गया था यहाँ पे. कैन यू इमेजिन, मतलब वो कंफर्टेबल होना ही नहीं चाहते. हमें लगता है कि यार हम कंफर्टेबल हो गए हैं, चलो हम मेलबर्न में हो गए हैं तो इट्स ओके. बट वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हो गया था, दैट्स व्हाई ही मूव टू इस्कॉन सिडनी. सो दिस इज द स्टेट ऑफ के इतने ज्यादा वो डिटैच होते हैं कि उनको कंफर्ट जोन में आना ही नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में. हालांकि ब्रह्मचारी वैसे ही आधे रिलेशनशिप तो वैसे ही छोड़ चुके हैं वो, ठीक है, और पर फिर भी वो रूममेट के साथ हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स हो जाते हैं. उनसे भी दे लव ईच अदर, बट दे डोंट वांट टू अटैच देमसेल्व्स टू दोज, ठीक है, इसलिए वो मूव करते रहते हैं. और फियरलेसनेस, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है यहाँ से कि अगर हम वहां से निकलेंगे तो हम कितने, मतलब अगर वो जा रहा है जंगल में से, हमें तो यहाँ तक जाना होता है तो तब भी हम बोलते हैं आ जा यार साथ चलते हैं, चल आ जा, ठीक है. तो वो जंगल में ट्रेवल कर रहे हैं अकेले, तो हम तो सोच भी नहीं सकते. तो वो फियरलेसनेस कहाँ से आती है? जब हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं कृष्ण पे, तब आती है फियरलेसनेस के पूरी तरह से. और अगर हम कहें तो, अगर हम मुझे बोले कोई जंगल में जाने के लिए, या हम जैसे लोगों को बोले, तो वो क्या होगी? केयरलेसनेस, रेकलेसनेस. ठीक है, दैट इज नॉट फॉर अस. तभी उन्होंने प्रभुपाद ने नीचे लिखा है फुलिशनेस. वी नीड नॉट इमिटेट द परिव्रजकाचार्य लाइक नारद और लॉर्ड चैतन्य. वी नीड नॉट इमिटेट दैट एंड वी कैन नॉट इमिटेट, है ना. हम ये नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, राइट, ये हमारा वी कैन गो, बट ये एट प्रेजेंट हमारा ये लेवल नहीं है, ठीक है ना. एट प्रेजेंट हमें सोचना चाहिए, ये मोर ऑफ ए रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ठीक है ना, कि आई पास थ्रू, आई एम गोइंग एंड ऑल, लीविंग एवरीथिंग. तो वी नीड टू थिंक आवरसेल्व्स. हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि कब, व्हेन इज द राइट टाइम फॉर मी टू रिटायर? इज इट द राइट टाइम नाउ? वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स. मेरी भागवतम की रीडिंग हो गई, मेरी लिसनिंग हो गई, मैंने बच्चों को भी देख लिया, मैंने घर का भी काम कर लिया, मैंने ऑफिस का भी काम कर लिया, ये सब कुछ कर लिया मैंने, चैंटिंग भी हो गई. ये सब कुछ करने के बाद कोई ऐसा दिन होगा कि जिसमें मेरे को मान लो आधा घंटा 1 घंटा मेरे पास बच गया, तो उस आधे 1 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ, दैट विल डिसाइड वेदर शुड आई गो फॉर रिटायरमेंट और नॉट. अगर वो जो आधा 1 घंटा मिल रहा है उसमें मैं न्यूज देख रहा हूँ, या मैं टीवी देख रहा हूँ, या मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, अगर मैं वो कर रहा हूँ, देन आई शुड नॉट रिटायर. बिकॉज फिर रिटायर होके क्या करूंगा कि मैंने बाकी काम तो सब छोड़ दिए, तो उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो उस टाइम में मैं वही करूंगा जो मैं उस आधे घंटे में किया मैंने. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ड्यूटी से ना भागें, ठीक है, पर ड्यूटीज करते रहें. और जब टाइम मिले, जब बाय चांस हमें फ्री टाइम मिल गया, इतनी स्पिरिचुअलिटी के भी काम कर लिया और मटेरियल लाइफ के भी काम कर लिया, उसके बाद भी टाइम मिला, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? देन वी शुड टेक द रिटायरमेंट. बट अब रिटायरमेंट तो हम नहीं ले सकते एट दिस स्टेज, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कल्टिवेट डिटैचमेंट. ठीक है, अब वो तो डिटैचमेंट कल्टिवेट कर रहे थे बाय गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, सब कुछ छोड़ छाड़ के. वी कैन नॉट डू दैट. तो हम कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका क्या है कि ये जानकर कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप से लेके ये मटेरियल चीजों से लेके एवरीथिंग इज टेम्परेरी. और दूसरी बात कि हमें ये कॉन्टिन्यूसली अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी.
अभी गौरव का लेक्चर था श्रीमद् भागवतम का, मेरा बैकलॉग चल रहा था तो मैं आज सुन रहा था। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु आप कैसे याद कर लेते हो इतना सब कुछ, वो बहुत सारे श्लोका बोलते हैं अपने लेक्चर्स में। तो वो बोल रहे थे रिपीट रिपीट, यू हैव टू रिपीटेडली, हियरिंग हैज टू बी डन, एक बार नहीं कि एक बार सुन लिया तो चलो ठीक है, इट हैज टू बी रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली रिमाइंडिंग अवर सेल्व्स, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की हमारी वो आदत है, तो हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें टेम्परेरी हैं। ठीक है, हम भूल जाते हैं कि बच्चा हमें जब वो 18 साल का होगा वो हमें छोड़ के जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जब वो जाएगा तो उस टाइम पे हमें शॉक नहीं लगना चाहिए। जब या कोई भी रिलेशनशिप जब हमारा टूटता है तो हमें शॉक नहीं लगना चाहिए। जब कोई चीज हमसे जाती है, गाड़ी पे स्क्रैच लगता है, तो हमें शॉक नहीं लगना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यार ये टेम्परेरी है, ये जानी है ये चीजें। ठीक है, वो भागवतम में आगे जाके आएगा श्लोक, सुखदेव गोस्वामी देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तो वो क्या बोल रहे हैं, देह बॉडी, अपत्या योर वाइफ, कलत्रा योर चिल्ड्रन, सो दीज आर व्हाट आर ऑल आर फॉलिबल सोल्जर्स, और these are the closest relationships what we have, right? हमारी बॉडी से हमें बहुत प्यार है, हमें हमारी स्पाउस से बहुत प्यार है, और हमें हमारी बच्चों से बहुत प्यार है। इन तीनों से ऊपर कुछ नहीं है। और वो वहीं पर ही वो श्लोका आ रहा है कि दीज ऑल आर फॉलिबल सोल्जियर्स, इवन दो दे आर फॉलिबल सोल्जियर्स, what we are doing is पश्यन् अपि न पश्यति, we are falling into their cycle again and again। इनमें हम बार जन्म जन्मांतर के बाद हम इनमें फंसते जा रहे हैं। So that is our nature. So that is why we have to keep reminding ourselves daily that we have to cultivate detachment by thinking that these are temporary, these are fallible soldiers। ठीक है, बट बच्चे के लिए प्यार, मैं नहीं कह रहा बच्चे को प्यार मत करो, बच्चे के लिए प्यार बहुत नेचुरल है और नेसेसरी भी है, बट बच्चों को प्यार तो आई मीन जानवर भी करते हैं। ठीक है, वो भी करते हैं, ठीक है, टू एन एक्सटेंट, बट हमें हमें हायर कॉन्शियसनेस दी है ताकि हम थोड़ा और आगे हम कुछ और कर सकें। इवन लाइफ एंड डेथ का भी उनको इतना नहीं पता होता। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि अगर एक बकरी सामने स्लॉटर हाउस में जा रही है और उसको काटा जा रहा है उसके सामने, और जो दूसरी लाइन में लगी हुई है वो फिर भी घास ही खा रही है, उसको पता ही नहीं है कि वो मर रही है तो नेक्स्ट नंबर उसका आना है, तो वो फिर भी अपने घास खाने में लगी हुई है। तो सेम चीज हमारे साथ है, राइट? तो और हमारे हाँ, तो अगर हमारी डिटैचमेंट नहीं होगी ना, जैसे ये नारद मुनि कल्टीवेट कर रहे हैं, कैसे हुई कि वो जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के अपनी माँ के मरने के बाद भी, जो कि उनका ओनली वो था, डिपेंडेंसी थी। तो अगर हम नहीं करेंगे और हमारे साथ कुछ लाइफ में ऐसा होगा ना, तो वी विल बी क्लूलेस, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या करें, राइट? बहुत सारे शास्त्रों में भी ऐसी हमारी एग्जांपल्स हैं। विदुरा, विदुरा की बहुत अच्छी एग्जांपल है, अभी आगे जाके भागवतम में आएगी वो। विदुरा जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होना था उससे पहले उन्होंने दुर्योधन उसको समझाया, धृतराष्ट्र को, अपने भाई को, कि ये युद्ध रोक दो, पांडवों का जो उनका बनता है हिस्सा उनको दे दो। पर दुर्योधन ने क्या कहा, तू इस घर से निकल जा और क्या कर, इसके सिर्फ तेरे मैं सांस छोड़ रहा हूं, बाकी और कुछ भी नहीं छोड़ रहा, अपना सब कुछ यहाँ पे छोड़ के तू यहाँ से निकल जा। तो अगर आप सोचो, आप अपने अपने आप को उसके शूज में डाल के देखो, देन यू विल रियलाइज कि छोटा सा उसका छोटा भाई का बेटा है वो, राइट? तो उसका बच्चा ही हुआ एक तरह से। अगर आपका बच्चा आपसे ऐसे बात करे कि निकल जाए इस घर से, और विदाउट एनीथिंग, एंड ही इज अ क्षत्रिय, राइट, तो उससे बड़ी कुछ हो नहीं सकता, उससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। तो इतना उसको हर्ट हुआ, इतना पेन हुआ उसको कि यार कैसे मुझे बोला जा रहा है और मैंने इतनी देर इनको सर्व किया है, और अपने घर, उसका ही घर था वो, ठीक है, हस्तिनापुर उसका भी घर था। तो अगर आपको कोई आपके घर से निकाल दे, आपका बैग पैक भी ना करने दे, ठीक है, आपका मोबाइल, आपका स्मार्टफोन भी बोल दे कि यहीं पर छोड़ के जाओ, ठीक है, तो हम कितना कितना दर्द होगा यहाँ पे बिना स्मार्टफोन के घर से निकलते हुए, राइट? तो वो हुआ, पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, बट इमीडिएटली ही रियलाइज्ड यार इट्स गुड, एक्चुअली इट इज गुड, ताकि मैं तीर्थ स्थान पे जा रहा हूँ। सो द सेम थिंग, जो उसके वो पेनफुल इमोशन था
उसकी इंटेलिजेंस ने काम किया और वो पेनफुल इमोशन किसमें हो गया, हैप्पीनेस में, राइट। तो मटेरियल लाइफ में अगर सैड हो तो तुम सैड ही हो, ठीक है, और अगर तुम हैप्पी हो तब भी तुम सैड हो। कैसे हैप्पी अगर सैड हो, कि हमें पता है कि टेम्परेरी नेचर है हैप्पीनेस की। अगर संडे आया है तो संडे के शाम के बाद संडे लगने लग जाता है, हैप्पीनेस वो खत्म हो जाती है, वो संडे की हैप्पीनेस खत्म, कि नेक्स्ट डे मंडे ऑफिस जाना है। बट स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट सैडनेस इज ऑल्सो हैप्पीनेस, विच वी हैव सीन इन दिस केस, राइट। कि विधुरा पेन में था, सैड था, बट इट टर्न इनटू हैप्पीनेस, कि यार वाओ, मैं तो पिलग्रिमेज पे जाता हूँ, अच्छा है मुझे मौका मिल गया पिलग्रिमेज पे जाने का। और वहां पे आगे उनको उद्धव मिले, और उद्धव को जाके वो रोए नहीं कि ऐसा हुआ मेरे साथ भाई, मेरे को घर से निकाल दिया, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, नहीं। उन्होंने जाते ही उद्धव से पूछा, हाउ इज कृष्णा, right? Even though he was in pain, still he was interested in Krishna. So if you are absorbed in Krishna, the point I'm driving here is, if you are absorbed in Krishna, तो जो पेन्स आते हैं ना, जो त्रिताप है, वो आपको नहीं लगते, right? तो सेम इज हैपनिंग विद नारद मुनि। इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बट स्टिल ही इज गोइंग ऑन, और अलोन जा रहे हैं जंगल में, उनको कोई कंपनी नहीं चाहिए। हमें तो पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, राइट। सपोर्ट सिस्टम के बिना हम तो ऐसे हो जाएंगे। तो अगर कोई ना हो हमारी देखभाल के लिए, बीवी है, मम्मी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। बट आप सोचो जो ब्रह्मचारी हैं, मैं एक वेणुगोपाल आचार्य हैं, उनका ही लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे, कहते यार हम तो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, आपके लिए तो फिर भी फैमिली है, चलो व्हाट्सएवर इट इज, ठीक है, जैसा भी है। बट हम, अगर आप कहते हैं आपको कोई बीमार हो तो आपको आपकी बीवी जूस ला के देगी या कुछ करके देगी। कहते मैं बीमार पड़ा हूँ तो मेरे को एक, और हम कहेंगे कि नहीं, बंदा बोलता है बीमार होता है तो मेरे को नहीं पीना है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं पियो, जबरदस्ती पियो, तो लाके तुम्हें ठीक करते हैं। कहते हैं ब्रह्मचारी को कोई तो पूछता नहीं है, पर कहते चलो आगे किसी ने पूछ लिया कि अच्छा ये पिएगा, वो बेचारा लेटा हुआ है बुखार में, बोल रहा नहीं मुझे नहीं पीना है, वो कहता अच्छा ठीक है मैं ले जाता हूँ। कहते कोई नहीं दोबारा तुम्हें पुश करेगा, बट यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और जब तुम अकेले उस सिचुएशन में से बाहर आते हो, तो क्या होता है, तुम्हारी डिपेंडेंसी कृष्णा पे बहुत बढ़ जाती है। सो दैट इज द ब्यूटी, के दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। ही इज गोइंग अलोन, स्टिल ही इज नॉट फियरफुल। वो डेंजरसली फियरफुल फॉरेस्ट में से जा रहा है, एक 5 साल का बच्चा, लेकिन स्टिल क्योंकि कृष्णा पे डिपेंडेंसी है और जो माइंड है वो कृष्णा में एब्जॉर्ब है, इसीलिए ही डजंट नीड एनी सपोर्ट सिस्टम, राइट। बट हमें तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब अविराज को एक दिन मैं जल्दी लेने चला गया, तो मैंने देखा वो बाहर घूम रहा है किसी लड़के के साथ। तो बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा तू क्या कर रहा था बाहर, तो कहता मैं टॉयलेट जाना था साथ में मेरे फ्रेंड को। तो मैंने कहा, तू तू क्या कर रहा था, तेरे फ्रेंड ने टॉयलेट जाना था, तूने क्या कर रहा था। कहता टीचर बोलती है कि 2 जाने साथ जाओ। मैंने कहा सही है, मतलब बच्चों को भी वो सिखाया जाता है कि तुम दोनों साथ में जाओ या जो भी है, मतलब हम बचपन से ही हमें एक होता है साथ का वो सपोर्ट सिस्टम। बट यहाँ पे नारद मुनि एलोन जा रहे हैं। अब हमें समझना है एलोन, सेकंड इसमें जो है एलोन वर्सेस लोनली। नारद मुनि इज एलोन बट नॉट लोनली, राइट, बिकॉज ही इज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। तो मैं भी कई बार 1-2 साल पहले मैं मतलब जाता था वॉक पे अपने कानों में ईयरबड्स लगा के, मुझे होता था कोई मुझे दिखे ना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं मैं जा रहा हूँ। मतलब अविराज को स्कूल पिकअप करने भी जाता था, तो उसमें 4 गलियां निकलती हैं, तो 4 गलियों में से कोई भी गली तुम पकड़ लो तो तुम स्कूल पहुंच जाओगे। मैं कौन सी लेता था, मैं 5वीं लेता था और घूम के जाता था, ताकि मुझे उन 4 गलियों में गाड़ियां पार्क होंगी, कोई मुझे दिख जाएगा तो मैं देख नहीं चाहता था, मैं चाहता था मैं अपना अकेला आराम से सुनता हुआ जाऊं। तो क्या हुआ, मैं 5th गली ली मैंने, वहां पे भी मुझे कोई मिल गया। मैंने अपने ईयरबड्स उतारे, में बात करने लग गया। तो मैंने फिर अपने सीनियर से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने अभी ब्रिजेश प्रभु ही है क्लास में, वो भी ही कैन शेयर हिज रियलाइजेशन। में आई आस्क्ड हिम, प्रभु के दिल ही नहीं करता है बात करने का। 2 साल पहले की बात है ये। तो ब्रिजेश प्रभु बोलते हैं, कहते मेरा भी यही हाल है। कहते मेरा नेक्स्ट लेवल का। इफ यू प्रभु बताना चाहोगे, शेयर करोगे, आपको याद है मैंने आपसे पूछा था। हाँ प्रभु याद है, अच्छे से याद है, अच्छे से याद है। एंड आई थिंक ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग ना, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट जो है ना वो हमारा क्या है, वो भी इंट्रोवर्ट है ना, एक छोटा सा पार्ट मेरा भी इंट्रोवर्ट है।
तो उसमें क्या होता है, मेरे को अपनी एनर्जी के लिए आई नीड टू, मेरे को सच में मेरी जो एनर्जी गेन चाहिए होती है वो मुझे अकेले में चाहिए होती है। और कई बार जब हम लोग लिसनिंग कर रहे होते हैं ना, तो वी नीड एन अल्टीमेट क्या बोलते हैं उसको, सॉलिट्यूड। एंड इट्स नॉट लोनलीनेस, इट्स एक्चुअली सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड गिव्स अस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। And most of the people, if you see, they spend at least quality amount of time with themselves in order for them to spend very amazing time out there with other people. Srila Prabhupada used to write, Srila Prabhupada used to do journaling, you know, even हमारे जितने भी आचार्यas हैं, these guys used to write every single day. They used to spend time with themselves, writing, you know, journaling करना. So I think Prabhu, I actually remember that time when you asked me, यार क्या है, मैंने कहा यार ये तो मैंने भी किसी से बात नहीं करी, but I feel the same, you know. So I like the way you actually put it, कि there is a difference between loneliness and being alone. So thank you Prabhu. Yeah, thank you Prabhu. Thank you. तो फिर मैंने इसके बाद, निशांत प्रभु, मैंने ही सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब किया, मेरे से ही बचते हो क्या? नहीं माता जी, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। आई वांटेड टू क्लियर इट। आप और रुचिता माता जी ये दोनों मुझे दिखते हो, आई वांटेड टू क्लियर ऑन दैट, आई एम कमिंग टू इट। तो अभी क्या था, तो फिर मैंने, हाँ ये तभी मैंने बोला ये 2 साल पहले की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जगन्नाथ राम प्रभु से बात की, तो उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा होता है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला दैट इज रॉन्ग, आई मीन यू शुड rather mingle with people and you share whatever you are listening, you share that. And I said yeah, that's really good. And क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही मुझे रुचिता माता जी मिले while going तो मैंने उतारे अपने ईयरबड्स और आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, और वो तो स्पिरिचुअल बात ही करती है वो भी ऑलवेज। तो उतारे और कुछ बात ऐसी चली और मैं एक्चुअली वही रिपीट कर दिया जो मैं सुन रहा था उस टाइम लेक्चर में। सो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि यू, दिस इज व्हाट इज लाइक, यू नीड दैट टाइम। एंड उसके बाद अब नारद मुनि यही नहीं बैठे रहे, वो जंगलों में नहीं बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने कितने डिवोटीज बनाए, जितने भी डिवोटीज बने, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वो सब नारद मुनि के थ्रू ही बने। राइट, सो द पॉइंट हियर इज नॉट कि तुम जाके अकेले बैठ जाओ, सॉलिट्यूड में बैठ जाओ और अपना ही करते रहो, यू हैव टू गिव एज वेल। हम गौरानिताएं देखते हैं ना, यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पे फिर वो दे भी रहे हैं। मतलब तुम पहले जगह, जैसे ब्रजेश प्रभु ने बोला कि यू नीड दैट एंड देन यू कैन स्पेंड मच बेटर क्वालिटी टाइम विद अदर पीपल व्हेन यू आर फुल। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हम नेक तक फुल हो जाते हैं, तो हम लव टैंक भर गया है, देन यू कैन गिव अदर्स, एंड व्हेन यू गिव अदर्स, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो फिर और अच्छा और बढ़ता है वो। भगवत गीता, चतुश्लोकी भगवत गीता में है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथायन्तश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा, जिसके मेरे मन में मेरे चित्ता, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, वो क्या करते हैं, वो परस्परम, वो आपस में क्या करते हैं, कथायन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में नित्यम मेरी कथा करते हैं। और उससे क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति मीन्स तुष्यंत, तुष्यन्ति मीन्स सेटिस्फाइड, दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड, एंड रमन्ति मीन्स दे आर ऑलवेज ब्लिसफुल। So if you keep on doing Krishna Katha, you will always be satisfied and you will always feel blissful. All right. तो अभी ये श्लोका बोलने स्टार्ट करूंगा मैं क्लासेस में, पहले नहीं बोलता था, क्योंकि अभी मैं और विष्णुप्रेश्वर प्रभु अटेंड करके आए हैं गौरांग प्रभु का लेक्चर। तो रुचिता माता जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि ये हमें भी बताओ, और मैंने बोला था कि हम विल कीप ऑन गिविंग यू फ्लेवर in between. So I'll take a pause here and I'll quickly stress upon the art of learning shlokas. थोड़ा सा इसमें मैं टच अपॉन करूंगा क्यों हमें क्यों लर्न करने चाहिए श्लोकास, राइट। उससे रीजन क्या है कि ये कंप्रेस्ड विजडम है, जो मतलब मैं ये गौरांग प्रभु के लेक्चर में से पॉइंट्स उठाए हैं, तो इसको हमें याद क्यों करें हम श्लोका, इसलिए यूज करें ताकि, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर सोल्जर ने जाना है, उसमें लड़ाई में जा रहा है, तो अगर वो उसके पास हथियार नहीं है तो वो क्या कहेगा, अच्छा रुक मैं आता हूँ, मैं हथियार लेके आता हूँ, मैं बुक खोलता हूँ और फिर मैं उसमें से श्लोका पढ़ के पेज नंबर निकालूंगा और फिर दूंगा। वो कहेगा रुको मैं हथियार लेके आता हूँ, फिर मैं गोली मारूंगा। नहीं, उतना टाइम नहीं है, राइट। इंटरव्यू देने जाते हो, वो कहते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड में यू हैव टू गिव एन आंसर। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू रूम से बाहर निकल के अच्छा यार इसका आंसर तो ये था, मैंने दिया ही नहीं। It doesn't work like that. So that's why
it's good to learn the shlokas, right? वो चैतन्य चरण प्रभु भी बोलते हैं, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी उन्होंने कि shlokas, learning shloka is like putting money in your wallet, or not learning shloka is like money is in the bank. तो द सेम एग्जांपल, राइट? अगर आपके वॉलेट में मनी है उसको तुम खर्च कर सकते हो, तो अगर आपके पास श्लोकास हैं तो दैट यू कैन यूज। और क्या फायदा कि जब हमारे पास लाइफ में सिचुएशंस आती है ना, किसी ने बटन प्रेस किया, किसी ने कुछ बोला, हमें कुछ किया, तो हमें उस टाइम पे उसको आंसर तो देना है वापस, वी हैव टू रिस्पॉन्ड हिम। तो जब हमारे पास मेमोरी में श्लोका होंगे ना, तो वी कैन इजीली टेल कि अच्छा भगवान कृष्णा ने भगवत गीता में इस सिचुएशन में ऐसा ये बोला था, तो देन यू कैन, वो मेमोरी में आपके रहेंगे ताजे ताजे, यू कैन यूज दैट इन योर डेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अपनी, राइट? और अगर हम नहीं भी यूज कर पाते, कुछ समझ में नहीं भी आता, स्टिल इट इज देवों की भाषा, भगवत गीता, गीता इज द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान के लिप से निकली हुई है, ठीक है? तो संस्कृत इटसेल्फ इज प्यूरिफाइंग। तो गौरांग दर्शन प्रभु के लेक्चर के बाद मैंने तो उनकी वेबसाइट पे जाके मैं तो सुबह वो ऑन कर लेता हूँ, गीता रत्नमाला, तो वो पूरी भगवत गीता के श्लोक है, और उनकी आवाज मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वो नाक में बोलते हैं और बड़ी अच्छी मेलोडियस आवाज है उनकी, तो मैं वो सुबह लगा लेता हूँ, तो वो चलते रहते हैं फिर बैक टू बैक, जितने भी की मेमोरी वर्सेस हैं भगवत गीता के। तो अदरवाइज इट्स गुड, है ना? तो हम सोनू निगम या अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं, तो रादर आदत डालो कि इसकी सुने, मतलब ये श्लोका सुने, तो उससे हमें क्या होगा कि याद भी होने लग जाएगा। हमें भी कैसे क्यों याद होते हैं, हमें 1990s के गाने भी याद हैं हमें, है ना? 2000 के भी गाने हमें याद हैं, सब गाने, मतलब पैराग्राफ तक याद है हमें, है ना? स्टैंजास याद है हमें। क्यों याद है? क्योंकि हम उनको सुनते रहे हैं, बार बार रिपीट करते रहे हैं, सुनते रहे हैं। तो ऐसे ही वो बोल रहे कि आप सुनते जाओ, आपको याद हो जाएंगे। प्रभु जी, एक बार आप वो लिंक अपने ग्रुप में डाल देंगे? हाँ हाँ जरूर, डेफिनेटली, भक्ति रक्षा ग्रुप में। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु। और क्या है, फिर जब श्लोकास हो जाएंगे तो उन्होंने बोला कि प्रेयर्स भी आप कर सकते हो, जैसे गजेंद्र प्रेयर्स, गोपी गीत। तो ये प्रेयर्स भी अगर आपको इसकी हैबिट बन जाएगी एक बार, तो फिर हम ये कुंती महारानी की प्रेयर्स, भागवतम में हर एक कैंटो में प्रेयर्स हैं, तो दोज प्रेयर्स आल्सो वी कैन लर्न, राइट? तो विल ओके, सो दिस इज स्मॉल, बीच में मैंने ब्रेक लिया, तो विल कंटिन्यू वेयर वी वर। कि हाँ, अब नेहा माता जी के पॉइंट पे आते हैं कि मैं रास्ता नहीं बदलता था, तो रिपीटिंग दैट वाज 2 years ago, बट वो क्या बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी, राइट, 10 साल उन्होंने आई थिंक तपस्या करी अलग से इन साइलो, है ना? तो उसके बाद ही स्टार्टेड गिविंग दैट एसोसिएशन, हिज एसोसिएशन टू एंटायर वर्ल्ड, राइट? अब मैं देख रहा था, मैंने अर्जुन से कहा, प्रभु से भी पूछा, वो मेरे साथ कल ट्यूसडे सर्विस करते हैं, तो मैंने ये भरत महाराज और नारद मुनि में, तो मुझे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। भरत महाराज भी जंगल चले गए थे और वहां से फॉल डाउन कर गए, भावा प्लेटफॉर्म से फॉल डाउन कर गए। नारद मुनि भी जंगल में जा रहे हैं मेडिटेट करने, तो वो क्यों नहीं फॉल डाउन करे? तो उन्होंने बोला कि नारद मुनि was not alone in the sense कि वो और लोगों से भी मिल रहे थे, he was traveling through, he was but भरत महाराज अकेले पड़ गए थे, that was the difference. तो initial stages पे it is fine if you are alone, but later on you cannot be alone for a longer duration of the time, ठीक है? उनके फिर डियर के साथ अटैचमेंट हो गई, उन्होंने बाकी सारी लोगों के साथ, साधु संतों के साथ अटैचमेंट छोड़ दिया था, सिर्फ वो डियर पे ही सारा फोकस हो गया था, but that was not the case with Narad Muni. So initially you can build that, like I gave the example of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and then you have to give as well, then you have to interact as well, as I said, Tushanti cha Ramanti cha, you have to do parasparam, wo katha karni chahiye, that helps, right? और इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहे थे वो, कि अब ये जंगल में जा रहे हैं, हम बड़ा अच्छा लगता है, अगर पिछले वर्सेस हम देखें कि वो घूम रहे हैं, वहां पे बड़ी अच्छी नदियां बह रही हैं, ये सब हो रहा है, बड़ा अच्छा, है ना? तो उन्होंने बोला था, एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला था महाभारत में देर आर 8 places ऑफ लस्ट। लस्ट कहाँ कहाँ रहती है? इलिसिट सेक्स में, मीट ईटिंग में, इंटॉक्सिकेशन में, गैम्बलिंग में, फिर फॉल्ट फाइंडिंग में, फिर अटैचमेंट टू मंडेन म्यूजिक एंड डांस, then sleeping in daytime, and the 8th one is desire to see different places for the variety of enjoyment. If you see, आजकल tourism industry is the biggest industry, one of the biggest industry. कुछ
कंट्रीज की इकोनॉमी टूरिज्म पे चल रही है, बट व्हाट व्हाई नारद मुनि इज ट्रैवलिंग, इसलिए नहीं कि वो चेक इन कर रहे हैं फेसबुक में, या चेक्ड इन इनटू दिस प्लेस गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नाउ दिस इज कवर्ड, नो, नॉट लाइक दैट। ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। उनको वो डिससेटिस्फाइड थे और इसीलिए वो एंजॉयमेंट करना चाह रहे थे और इसलिए नहीं वो गए थे। अभी मेरा मुझे जिम में ना वो मिला अभिराज के क्लासमेट का फादर, तो उसने कहा, कहता यार तुम छुट्टियों में कहाँ गए? मैंने कहा हम तो कहीं नहीं गए। कहता यार ऐसे कैसे, मेरा बेटा तो बोलता रहता है कि छुट्टियों में लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, वहां लेके जाओ। मैंने कहा नहीं यार, अभिराज तो नहीं बोलता ऐसे। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार हमें टाइम ही नहीं मिलता। वो सप्ताह, भागवत सप्ताह था, वहां पर इतना टाइम लग गया, फिर किसी का बर्थडे आ गया, कभी कुछ हो गया, टेम्पल में हो गया, तो हम इतने बिजी वैसे ही रहते हैं कि छुट्टियों का पता ही नहीं चलता, हमें लगता ही नहीं है। वो बच्चे को भी वो क्रेविंग होती ही नहीं है कि मुझे जाना है कहीं, जबकि वो बोल रहा था कि सबको होती है, कि हर कोई ना कोई घूमने गया ही है। बट ये इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि हमें वो अंदर से वो डिजायर फील नहीं होता कि कहीं जाना है, राइट? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। तो द सेम इज द केस विद नारद मुनि। तो नारद मुनि घूमने फिरने नहीं गए थे वो जंगलों में, राइट? उनका पर्पस क्या था? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तीन पर्पस थे। एक तो क्या था कि टू गेन फेथ इन द गॉड, वो फियरलेस, वो डिपेंडेंसी बनाने के लिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्थ में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिनेमा और ये पब्स और ये सब नहीं है। अगर आप आज की डेट में भी नहीं है, आज की डेट में भी लोग हिमालयाज और वो सब जाते हैं कि वहां पर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें नहीं है। और इवन वहां पे ये एवलांचेस और मौसम चेंज हो जाता है, तो यू आर फुली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। सॉरी, यू आर फुली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, राइट? और दूसरा क्या है कि फिर वहां पे दूसरा पर्पस क्या है कि खाना मिलता है नहीं मिलता है, डिस्कम्फर्ट है कंफर्ट है, तो यू गो थ्रू ऑल दैट, सो दैट विल मेक योर माइंड स्ट्रोंगर, राइट? अभी अर्जुन सखा प्रभु ही बोल रहे थे उस दिन, तो खाना बनाया मैंने, तो उस दिन मैंने उसमें ना दही में रायता बनाया था, तो रायते में मैंने चीनी डाल दी। मुझे फोन करके बोल रहे, चीनी क्यों डाली तूने रायता में? कौन डालता है चीनी रायता में? गाली गुली पड़ी। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वो बनाई, खिचड़ी बनाई। तो खिचड़ी तो रोज बनाते हैं हम लोग हर ट्यूसडे, तो बनाई, तो उसमें कोरिएंडर पाउडर ज्यादा डल गया और वो मुझसे ही नहीं खाई जा रही थी। आई थिंक उस दिन वो था, एकादशी थी। कोरिएंडर पाउडर ज्यादा डल गया तो अजीब सा ही टेस्ट आ रहा था। तो मैंने पूछा अर्जुन सखा प्रभु से, मैं कहा प्रभु आज अच्छी नहीं बनी ना? कहते नहीं यार ठीक है, कहते मैं प्रिपेयर्ड ही रहता हूँ कि जैसा भी हो, आई एम प्रिपेयर्ड टू ईट वट एवर इट इज। मैंने कहा यार उस दिन तो ऐसे मुझे डांट रहे थे। फिर देन आई रियलाइज्ड कि उस दिन जो डांटा उन्होंने, जस्ट टू टेल के, नॉट फॉर हिज ओन थिंग, राइट? कि मुझे मीठा दही नहीं पसंद, ही जस्ट डिड इट कि ताकि मैं सीखूं। और बट ही वाज टोटली डिटैच्ड कि मुझे कैसा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ही सेड ओके, आई एम यूज्ड टू, आई ईट एवरी काइंड, बिकॉज हर रोज अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वो अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं, तो आई एम यूज्ड टू इट, आई एम नॉट अटैच्ड कि ये खाना में नमक ज्यादा है या वो ज्यादा है। So I was very impressed. तो सेम थिंग हियर, कि वो जो तुम्हारे माइंड की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब तुम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में रहते हो। दैट इज व्हाई पीपल कीप ऑन, दिस डिवोटीज लाइक नारद मुनि, दे आर acharyas, they keep on traveling from one place to another. And then the last is to give enlighten other people, right? To give Krishna consciousness to others. Mind to यही था ना, तीन चीजें उन्होंने बोली हैं, to gain faith in God and strength of mind, as well as to enlighten the inhabitants with the messages of the God. These three are their purposes of a sannyasi, of a mendicant. ठीक है? तो आई थिंक या, एंड ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया था कि हियर एंड रिपीटेडली चैंट, तो सुनो और आगे उसकी कथा को आगे करते रहो, राइट? सो दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक, कोई कमेंट क्वेश्चन? विल मूव फॉरवर्ड। परिश्रांते इंद्रियात्महं परितो बुभुक्षितः सनात्वा पित्वा हृदय नद्या उपाश्रेष्टो गताश्रमः। Thus traveling, I felt tired, both bodily and mentally, and
I was both thirsty and hungry, so I took a bath in a river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. You want to read the purport? I can read it, bro. A traveling mendicant can meet the needs of the body, namely thirst and hunger, by the gifts of nature without being beggar at the doors of the householders. The mendicant therefore does not go to the house of a householder to beg, but to enlighten him spiritually. Hare Krishna. Right. तो इसमें बड़ा अच्छा मैंने अभी भगवत गीता सेकंड चैप्टर का महात्म्य पढ़ा था, विष्णु प्रेषर प्रभु ने भेजा था। तो उसमें क्या था, ये सेम वर्स था। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा ना, थर्स्टी एंड हंग्री, तो मुझे उसका महात्म्य याद आ गया। I was both thirsty and hungry, and just by drinking water, I got relief from my exhaustion. This is the power of a devotee, right? और जो कि जिसका मन कृष्णा इन्वॉल्व है, absorbed है, just by having a water, his thirst and hunger is gone. And I can took immediately I related to that महात्म्य. तो मैं quickly share करता हूँ, उसका महात्म्य भी है हमारे पास टाइम। तो उसमें क्या है, भगवत गीता का जो सेकेंड चैप्टर पढ़ता है ना, तो उसका किसी को आता है महात्म्य, पता है, याद है? चलो राइट। उसमें क्या था, एक बहुत सेंटली ब्राह्मण था, तो वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन की खोज में था वो। तो वो बहुत सारे उनको अपने सेजेस को अपने घर पे बुलाता था, उनको प्रसादम खिलाता था, उनकी सेवा करता था, और उनसे पूछता था, इंक्वायर करता था कि बताओ मैं क्या करूं, कैसे मैं करूं। तो उसकी कोई बात बनी नहीं, वो बहुत यज्ञ किए, कर्मकांड किए, कुछ उसका बना नहीं। फिर उसने एक दिन देखा उसके घर के बाहर एक साधु बैठा था समाधि में। तो उसने उसको घर बुला लिया, उसकी सेवा करी। तो उसने बोला कि हाँ, वो उससे खुश हुआ। तो उसने बोला कि एक जगह है, वहां पर जाओ और वहां पे तुम्हें मीरवान नाम का एक बंदा मिलेगा, उससे पूछो, उसने ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड, उसने भगवान की प्राप्ति करी हुई है, तुम वहां जाओ। तो फिर वो वहां पर गया, वहां पर देखा बहुत ही सुंदर जगह थी, और पहाड़ पे ना स्टोन पे एक वो बैठा था आदमी, और वो नीचे देख रहा है जंगल, बहुत ही सुंदर शांत जंगल। वहां पे भेड़ बकरियां घूम रही हैं, चीते, टाइगर, शेर, ये सब भी घूम रहे हैं, और बकरियां शेर के साथ बैठी हुई हैं, और वो फियरलेस हैं। तो वो देख रहा है, कहता है यार ये कैसी जगह है ये, और वो वहां पे जाके बिल्कुल पीसफुल हो गया। तो उसने फिर मीरवान से पूछा कि यार हाउ इज इट, कि ऐसा कैसे। तो फिर मीरवान ने आगे उसको कहानी बताई। तो मीरवान ने उसको आगे कहानी बताई कि यहाँ पर एक शिवलिंग था, और ब्रह्मा जी ने वो शिवलिंग स्थापित किया था। और वहां पर एक सेज आया, उसने बहुत सेवा करी शिवलिंग की, और उसने बहुत सेवा करने के बाद उसको उसको फिर भी वो प्राप्ति नहीं हो रही थी। पर फिर क्या हुआ, एक वहां पर और सेज आया, और उसने उसको बोला कि तू भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर पढ़, उससे तेरे को बहुत शांति मिलेगी। तो उसने वही किया, और एक्चुअली ही वेंट बैक टू गॉड हेड। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो पूरी जगह इतनी पीसफुल हो गई, इतनी पीसफुल हो गई वो पूरी जगह, दीदी का फोन, इतनी पीसफुल हो गई वो जगह कि वहां पर जो ये थे भेड़ बकरियां और शेर, ये सब उसने, हाँ उसने ये भी बताया, कहता मेरी बकरी वहां चली गई थी, तो शेर ने उस पे झपटा, और शेर ने उसको खाया नहीं। एकदम से शेर ने बोला कि ये मुझे क्या हो गया। तो बकरी ने भी बोला कि मुझे तेरे से डर नहीं लग रहा है। तो दैट वाज द होल इफेक्ट ऑफ दैट प्लेस, जहाँ पे वो भगवत गीता का सेकंड चैप्टर पढ़ा जाता था, जस्ट श्लोका रेसिटेशन। तो शेर की भूख प्यास सब कुछ मिट गई। तो वहां पे लोग, कोई किसी को खा नहीं रहा है, सबकी भूख प्यास सब कुछ मिट चुकी है। अगर तो कहने का पॉइंट वो तो एक सेकंड चैप्टर का था, बट अगर हम देखा जाए कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उसमें ही इतनी पावर होती है कि जस्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर ही बिकेम वो फ्री फ्रॉम थर्स्ट एंड हंगर, राइट। और इसमें ये तो चलो स्टोरी हो गई, राइट, बट व्हाट्स इन इट फॉर अस,
आई मीन एवरी, ये कोई भी चीज भागवतम में ऐसी नहीं बोली गई है कि यार ठीक है चलो कहानी है सुना दी, ठीक है। हर एक श्लोक में, ईच एंड एवरी वर्ड में हमारे लिए बहुत बहुत बेहतर है, और हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हमारे लिए इसमें से क्या लेसन निकल रहा है। तो जो मुझे लगा इस यहाँ पे कि हमें अपनी, जैसे उनकी वाटर पीने से ही उनकी वो एग्जॉस्शन खत्म हो गई, ऐसे ही हमें अपनी जो जरूरतें हैं ना वो कम करनी चाहिए। तो और ये हमारे भागवतम के सेकंड कैंटो में भी आया था। ये जब मैंने भागवतम स्टार्ट करी थी तो तब भी हमें ऐसे आया था। तो आई डिग दैट आउट, 2020 का था ये। तो उसमें मैंने ऐसे लिखा था कि हमें अपनी नीड्स कैसे कम करनी चाहिए। सो आई क्विकली शेयर दैट स्निपेट हमारे पास। I thought I'll share that हमें ये एक्सरसाइज हमें सब करनी चाहिए because we are in Krishna consciousness and this helps a lot। तो ऐसे का टॉपिक था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड और क्या था ऐसे का एग्जैक्ट टॉपिक, हाँ, लिविंग अ सिंपल लाइफ। तो हम अपनी लाइफ को सिंपल कैसे जी सकते हैं, राइट। तो उसमें तो डिजायर्स थी टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ एंड ऑल। तो बेनिफिट्स इसमें थे कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके, दैट विल नॉट गो इनटू। तो व्हाट वी गो इनटू कि अब देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि नीड्स, कि मेरी नीड्स आपकी नीड से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। मेरी नीड है कि मुझे एसी रूम में बैठना है, आपकी नीड है कि आपको पंखे के नीचे बैठना है। तो एसी जो है वो मेरी नीड बन चुका है आज की डेट में। बट द पॉइंट हियर इज नॉट के नीड क्या है, पॉइंट हियर इज ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट नहीं आई थिंक सेकंड थर्ड श्लोक है, जिसमें वो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, अत्यहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। तो हमारी भक्ति इन 6 चीजों से डाउन जाती है। षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति, विनाश होता है भक्ति का 6 चीजों से। कौन सा? अत्यहार, प्रयास, प्रजल्पा और नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ग्रीड, लोगों नॉन डिवोटी एसोसिएशन और रूल्स ना फॉलो करना, और प्रजल्पा करना, गॉसिप करना, और अत्याहार करना। अब अत्याहार के साथ प्रयास लिंक्ड है। अब अत्याहारा क्या है कि अगर मेरी 100,000 सैलरी है तो आई वांट 200,000। सो बट फॉर द अदर पर्सन ही माइट बी गेटिंग 200,000 जस्ट बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे। बट वही मुझे अगर 200,000 पे जाना है तो हो सकता है मुझे 6 की जगह 12 आवर्स करने पड़े। सो प्रयास इज इम्पोर्टेंट। तो अगर प्रयास मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है, इफ वी डू एक्सेसिव एंडेवर्स वी मस्ट डू मोर एफर्ट्स टू फुलफिल आवर डिजायर्स। सो दैट इज वेयर दिस नीड इज दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो हमें क्या करना चाहिए? तो ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी जो सीनियर्स ने हमें बताई है कि अपना एक कॉलम बनाओ, उसमें लिखो, एक टेबल बनाओ कि मेरी नेसेसिटीज क्या है। नहीं तो हमें ये सारी बहुत ब्लर हैं, ये मिक्स हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कंफर्ट क्या है, लग्जरी में कब मैं जा रहा हूँ और कब मेरी नेसेसिटी है। और स्पेशली मेरे जैसा बंदा, मैं तो कोल्स में जाता हूँ, मैं देख के उठा लाता हूँ सब कुछ, इतना शॉपर कोलिक हूँ मैं, ये बहुत इम्पल्सिव बायर हूँ मैं। तो बट मैंने ये एक्सरसाइज करी तो मुझे इट हेल्प्स कि नेसेसिटी क्या है, मिल्क, ब्रेड, शुगर, मतलब ये तो यू कैन डू वट एवर इज योर अकॉर्डिंग टू योर थिंग, बट दिस आई एम जस्ट शोइंग अ टेम्पलेट so that you all can put it in, and I liked it, I mean it worked for me। तो फ्रूट सैलेड कंफर्ट है, ठीक है, और लग्जरी है, तुम ये है, आई मीन उस टाइम पे मैं आई थिंक इतना 3 साल पहले की बात है, तो मैं बाहर भी खा लेता था, घर पे तो नहीं खाता था आई थिंक लहसुन प्याज, पर मैं बाहर से कभी कभी महीने में एक बार शायद खा लेता था। तो तभी उसमें मैंने लिखा कि लग्जरी है डाइनिंग इन रेस्टोरेंट। अब ये मैं मेलबर्न जैसे शहर में बैठ के किसी को बताऊंगा भाई लग्जरी है डाइनिंग, तो कहेंगे भाग जाए यहाँ से, ठीक है। तो बट अभी तो पता ही नहीं चलता है, अभी ये चीजें वी हैव कम सो फार, टच वुड। तो सो वी कैन ट्राई दैट आउट एंड सी। तो इससे क्या होगा कि हमारी लाइफ जैसे जैसे सिंपल होगी ना, तो हमें हमें पैसा, जैसे उस दिन ओजस्वी प्रभु भी बोल रहे थे कि पैसा, कहते बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस बढ़ ही रहा है कहते खर्च तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि सिंपल, इतनी सिंपल लिविंग है कि कहीं रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे, दारू नहीं पी रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, कहीं पर जा नहीं रहे हैं, पब्स में नहीं जा रहे हैं। तो मतलब कहाँ जाएगा पैसा? डोनेट करने के बाद भी बच जाता है काफी।
तो बट वो क्यों होता है? बिकॉज हमने अपनी जो लाइफ है वो सिंपल कर ली है। खाली पानी से ही वो हमारी भूख प्यास मिट गई है, ठीक है, जैसे नारद मुनि की मिट्टी है। तो खाली पानी पी के ही गॉट रिलीफ फ्रॉम माई एग्जॉशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फिर उसके बाद उन्होंने ही स्टार्ट्स मेडिटेटिंग। सो एक लॉजिकल एंड पॉइंट हो गया यहाँ पे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स यू कैन विल स्टॉप हियर। प्रभु आई हैव a comment to make। अभी मैं गौरंग दर्शन प्रभु की क्लास में जब हम लोग थे ना, तो आप एक दिन आप चैंटिंग करने के लिए निकल गए थे और मैं उनके साथ खड़ा था प्रभु के साथ। तो वो मुझसे पूछ रहे थे प्रभु आप कैसे आए, तो मैं उनको बता रहा था कि ना ऐसे ऐसे। तो बोलते थे कि आप ऐसे लोगों के साथ थे जो रोज दारू पीते थे और रोज, मैंने कहा हर वीकेंड पे दारू और हर रोज सिगरेट, है ना। तो उन्होंने बोला कितना खर्चा हो जाता था। तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा हिंट दिया, तो कहते, और वो पूरा उन्होंने साल भर का कैलकुलेशन कर डाला। बोले तो मतलब इतना, तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब तो आपने जब इस भक्ति कक्षा में भक्ति में आए होगे तो आपने तो एक और घर बना लिया होगा दूसरा घर। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि, क्योंकि उस वक्त तो वो नेसेसिटी लगती थी, वो नहीं लगता था कि लग्जरी है। कि अगर हम लोगों को हर फ्राइडे को कहीं जाना है घूमने, तो इट्स नॉट ए लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। ठीक है, वो तो इसीलिए कहते हैं ना कि सारी मिजरी का सॉल्यूशन के एक ही है, ज्ञान, है ना। अज्ञानता सबका वो है, अज्ञानता सबकी जड़ है, और उसको हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान के लिए हम लोग दो तरीके से हो सकता है, या तो हम ज्ञान खुद ही बैठ के अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहें, या फिर किसी के सानिध्य में रह के हम लोग पढ़े, है ना। अभी हम लोग शिला प्रभुपाद का सानिध्य ले रहे हैं, एक दूसरे का संग ले रहे हैं। और जो दूसरी तरीके से करता है वही भक्ति मार्ग में आ पाता है, वरना जो ज्ञान मार्ग में होते हैं वो भी बहुत जल्दी भटक जाते हैं, है ना। सो थैंक यू प्रभु, आई वाज अ वंडरफुल अमेजिंग क्लास, आई लव्ड इट, थैंक यू। If you can share your notes with me, I'll be awesome, Prabhu. No? Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. All right, then we'll stop here.